السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تبارك وتعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع بمكان قبل أن تقع على الأرض وتيبوا بها نفسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1442 اسلامی سال کا عظیم القدر آخری 12واں مہینہ ذی الحجۃ الحرام، آج اس کی 5 تاریخ ہے. اس حساب سے بقرعید یعنی 10 ذی الحجہ آئندہ آنے والی بدھوار کو ہے، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دن پڑیں گے جو قربانی کے دن کہے جاتے ہیں. اس نسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں خطبے میں قرآن کریم کی وہ آیات جو قربانی کی فرضیت، وجوب پر دلیل ہے اور عمل ذبح پر دلیل ہے، وہ آیتیں اور قربانی کرنے پر آدمی جس قدر فضل و کمال کا مالک بنتا ہے، یعنی جو فضیلت اور ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ روایتیں پڑھ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں میں نے پیش کی ہے. قربانی ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے سے آدمی اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. ہر وہ عمل جس کے کرنے سے آدمی اللہ کے نزدیک ہو جاوے، اس کو لغتاً قربانی کہتے ہیں. جیسے حدیث شریف میں ہے: ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل
नफल नमाज से इंसान अल्लाह के बहुत नजदीक होता है। फर्ज तो अपनी जगह पर जरूरी है। मक़ाम फिस्साअतिल ऊला कअन्नमा क़र्रब बदनतन। अभी हम नमाज़े जुमा के लिए मस्जिद में आ गए, जो सबसे पहले नंबर पर आया उसको एक ऊंट कुर्बान करने का सवाब मिलता है। तो पहले नंबर पर आने वाले के लिए कअन्नमा क़र्रब बदना, एक ऊंट अल्लाह के रास्ते में जमा कर देने का सवाब है। कुर्बानी हर कौम, हर मुल्क, हर मिल्लत में पाई जाती है। हर कौम, हर मजहब और हर मिल्लत में पाई जाती है। ईसाइयों में, यहूदियों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, अलबत्ता नाम अलग अलग है। हम कुर्बानी और नहर कहते हैं, कोई नजर कहता है, कोई भेंट कहता है, कोई नरवान कहता है, कोई बलिदान कहता है। नाम अलग अलग है, हासिल एक है। नरवान, बलिदान, नजर, भेंट, चढ़ावा, कुर्बानी, लेकिन सबसे जामे तरीन लफ्ज कुर्बानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इक़र्रबा कुर्बानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिन अल-आखर। कायनात के सबसे पहले आदमी और आदमियत का खुलाफा हजरत आदम के दो बेटों की कुर्बानी का वाकया कुरान में लफ्ज कर्रब से बयान किया है। इसी से मालूम ये हुआ कि कुर्बानी का लफ्ज कुर्बानी के माना में सबसे जामे तरीन लफ्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास अला कुल्ली अहली बैतिन फी कुल्ली आमिन उदहिया। या अय्युहन नास अला कुल्ली अहली बैतिन फी कुल्ली आमिन उदहिया। ऐ लोगों, हर घर पर हर साल में कुर्बानी वाजिब है। इस बात के सबूत के लिए कि कुर्बानी जिंदगी में एक मर्तबा नहीं है, हर जिलहिज्जा की 10 तारीख की आमद पर हर साल कुर्बानी वाजिब होगी। अगरचे सालाना अमल है, लेकिन हर साल का अमल है। कुर्बानी का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में दिया है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ऐ नबी जी, आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मक्का के मुशरिकों की आदत थी जमाना ए जहालत में, जमाना ए शिर्क में, मक्का मुकर्रमा में जानवर ज़बा किए जाते थे, लेकिन काबे में ला करके, बैतुल्लाह में जानवर को लाकर, यानी हरम में जानवर को लाकर के काबे के पास ज़बा करते थे और जमा करने के बाद उसका खून लेकर काबे की दीवार पर छिड़काव करते थे और इसके गोश्त को बोटी लेकर काबे की दीवार पर लगाते थे और यूं समझते थे कि हमारी कुर्बानी कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने इस बातिन अकीदे का रद्दिया किया। फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा। हरगिज हरगिज अल्लाह को तुम्हारे जानवरों की कुर्बानी का गोश्त और तुम्हारे जानवरों की कुर्बानी का खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है। हाँ, अल्लाह को तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। इसीलिए जिस आदमी ने इखलास लिवजहिल्लाह, अल्लाह को खुश करने के लिए इखलास के साथ कुर्बानी की, वही कुर्बानी कबूल है। अगर रियाकारी के जज्बात के साथ ताजा मोटा फरवा नामवर जानवर खरीदा लाखों करोड़ों का, वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। अल्लाह के यहाँ कबूल है वो जानवर कि जिस जानवर की कुर्बानी इखलास के साथ अल्लाह की खुशनुदी के लिए रियाकारी के जज्बात से पाक होकर की जाए, वही कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होती है। हमारे जमाने में व्हाट्सएप पर और इसी तरह बाजारों में वो बकरी की कीमत और वो बड़े जानवर की कीमत जो लाखों में बोलती है और उस पर बनावटी कहीं अल्लाह वगैरह लिखा हुआ होता है। एक इंसान की कड़ा होती है बालों में, इब्तिदान बच्चा लेकर फिर उसको किसी चीज से उभार करके
ऐसी चीजें पैदा करते हैं, इसकी कोई खुसूसियत नहीं है। खुसूसियत इखलास की है। जो इखलास के साथ अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी करे, इसीलिए कुर्बानी के मसाइल की किताबों में एक जुज़इया लिखा हुआ है। एक मालदार इंसान अपनी तरफ से, अपने घर के अफराद की तरफ से, हत्ता के छोटे बच्चों की तरफ से भी कुर्बानियां करता है, या ताजा मोटा तगड़ा फरबा नामवर रियाकारी के जज्बात से एक बकरा 5 लाख में खरीदा, या एक बकरा 1 लाख में खरीदा, या एक बड़ा जानवर 2 लाख में खरीदा, उलमा ने ये मशवरा दिया है कि बेहतर तो ये है उस मालदार के लिए कि वो 20,000 में 10,000 में कुर्बानी का, अपना वाजिब कुर्बानी का एक बकरा खरीदे, और बाकी लाखों के जो उसने 5 लाख 10 लाख लगाए, इसके बकरे खरीद करके उम्मत के गरीबों को तकसीम करें अपनी कुर्बानी की नीयत से, तो कितना बड़ा सवाब उसको मिलेगा। ये अफजल है उस अमल के मुकाबले में। ये इखलास वाला है, और गुरबा और मसाकीन और उम्मत के गरीब लोगों की इमदाद है। इसीलिए कुरान करीम ने खास तौर पर कुर्बानी में गरीबों को याद करने के लिए फरमाया, फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ और फकीरों के लिए इशार और हमदर्दी करते हुए उनमें तकसीम भी करो। सहाबा में कुर्बानी की तरतीब ये होती थी कि जानवर कम अज कम 2 महीने पहले खरीदते थे। ये सहाबा का अमल है जो उम्मत के लिए उसवा है। आका ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा और राशिदीन अल महदीयीन अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस। तुम पर मेरी सुन्नतों की और मेरे सहाबा की सुन्नतों की इत्तिबा लाजिम है, जरूरी है। मेरी सुन्नतों को और सहाबा की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ो और इसको अपनी दाढ़ों से जमा लो। अद्दू अलैहा बिन नवाजिस, अपनी दाढ़ों से मजबूत यानी बराबर जमा करके रखो। सहाबा क्या करते थे? 2 महीने पहले कुर्बानी का जानवर खरीदते थे, खूब खिला पिला कर ताजा मोटा फरबा करते थे, एक बार अपने से मानूस करते थे, फिर उसके बाद उसकी कुर्बानी करते थे। कुर्बानी का जानवर उम्दा होना चाहिए, ऐब से पाक होना चाहिए, उसके मालिक का मानूस होना चाहिए। उसके दिल को ठेस पहुंचेगी कि हाँ कोई चीज मुझसे रुखसत हो गई, जिससे उनसीयत होती है। उसकी फुरकत और उसकी जुदाई पर आदमी को गम और सदमा लाहिक होता है। जैसे किसी अजीज करीब का इंतकाल हो गया, किसी महबूबा बीवी का इंतकाल हो गया, किसी महबूब शौहर का विशाल हो गया, तो कैसी याद आती है उसकी और इसके दिल को कैसे चुभता है। ऐसे ही कुर्बानी हुई तो दिल में चुभन हो, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए साहबा अपने जानवरों को कुर्बानी के लिए जो मुतय्यन होते हैं, इसको 2 महीने पहले खरीद कर ताजा मोटा फरबा उम्दा बनाते थे, इसको मानूस करते थे, फिर अल्लाह के लिए उसको ज़बह करते थे। कुर्बानी करने से क्या मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अमीला आदमीयुन, ये तिरमिजी की रिवायत है, तरगीब में है, मा अमीला इब्नु आदम, आदम के बेटे का कोई अमल अल्लाह के यहां कुर्बानी के दिन अपने जानवरों का खून बहाने से ज्यादा प्यारा नहीं। एक में आदमी है, आदमी का कोई अमल कयामत के दिन, बकरीद के दिन अपने जानवर का खून बहाने से ज्यादा प्यारा अल्लाह को नहीं। कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की मगफिरत हो जाती है। इस पर उलमा ने तशरीह लिखी है, इस जुज़ पर। एक कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा अल्लाह के यहां बहुत प्यारा है। एक कुल कायनात का खुलासा हम सब के आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक यानी थूक, वो बहुत मुबारक है।
वो बहुत कीमती है। इसलिए पैगंबर का थूक मुबारक सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे। सहाबा की मौजूदगी में पैगंबर को थूकने की जरूरत पेश आती थी या थूक निकलता था तो सहाबा लेकर के अपने जिस्मों पर मलते थे। और खुदा की कसम, कोई मुस्काम्बर इतना ज्यादा खूबसूरत और इतना ज्यादा खुशबूदार नहीं है जो आका का लुआब मुबारक खुशबूदार था। इसकी जेल में तस्वीर लिखी है, जैसे वो मुबारक और सहाबा उसको जमीन पर गिरने नहीं देते थे। इसका मतलब ये नहीं कि खून आप लीपे जिस्म पर, जैसे लोगों की आदत होती है कि कुर्बानी के जानवर के खून में अपने पैर रंगते हैं। ये खून नापाक है, जो जानवर से अलग हो गया, ये खून नापाक है। इसीलिए आगे आपको बताया जाएगा कि कुर्बानी में जानवर के ज़बह करने का तरीका क्या है, उस तरीके से ही जानवर ज़बह किया जाए। मैंने रिवायत पढ़ी, आदमी का कोई अमल क़यामत के दिन अल्लाह के यहां इतना ज्यादा महबूब और पसंदीदा नहीं जो कुर्बानी के दिन में आदमी कुर्बान करता है। इससे बड़ा अमल कोई नहीं कुर्बानी के दिन में। वह इन्नहु लयात यौमल क़यामति बिकुरूरिहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा। हदीस में 3 चीजें हैं। कल क़यामत के दिन ये कुर्बानी का जानवर अपने सींगों, अपने खूरों के समेत और अपने बालों के समेत मैदान क़यामत में आएगा। हालांकि सिंगड़ा खाया नहीं जाता, बाल खाए नहीं जाते, खूर खाए नहीं जाते, बेकीमत चीज है। हदीस पाक में उसको क्यों बयान किए? सिंगड़ा काम का नहीं है, खाया नहीं जाता है। इस तरह खूर, इसी तरह बाल, फरमाते ही है ये बेवकात चीज, न खाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन अल्लाह के यहां इस जानवर की कदर कीमत वो है कि मीज़ान क़यामत में, क़यामत के दिन इसका भी वजन किया जाएगा और इसको भी तोला जाएगा। ये भी बेवकात नहीं है, अल्लाह के यहां इसकी भी बहुत कीमत है। ये तो कुर्बानी का इस हदीस से पाक में 3-4 फायदे बयान हुए। कुर्बानी के जानवर के खरीदने पर जो पैसा खर्च किया जाता है, ये तमाम तर पैसों के मुकाबले में सबसे अफजल पैसा है। इससे अफजल पैसा कोई नहीं। सबसे ऊंचा पैसा वो जो कुर्बानी का जानवर खरीदने में वपरावे। ठीक ये कुर्बानी का जानवर हमने जो खरीदा है, ये कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग से पर्दा बन जाएगा। ये जहन्नम से आग बन जाएगा, जहन्नम की आग से आग बन जाएगा। ये पैसा जो हमने कुर्बानी के जानवर के खरीदने में लगाया, कल क़यामत के दिन ये जहन्नम की आग से हमारे लिए पर्दा बन जाएगा। आका ने फरमाया, अक़दिमू दहायाकुम फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम। तुम अपनी कुर्बानी के जानवरों को ताज़ा मोटा फरमा किया करो, इसलिए कि ये कल क़यामत के दिन तुम्हारी सवारियां बनेगी। तो ये कुर्बानी का जानवर इंसान की सवारी बनेगा। हाँ, लेकिन ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए, बेजा भाव और बिना वजह एकदम बोली बोलना ये कानून शरीयत के बिल्कुल विरुद्ध है। इसमें कोई फजीलत नहीं है, इसमें कोई सवाब नहीं। अगर उम्मत इन रियाकारियों के मसाइल को और इन जानवरों को खरीदना छोड़ दे तो उनके मालिक इस किस्म की चीजें से एहतराज करेंगे। हमें इसी पर अमल करना है। 15,000, 17,000, 12,000 का एक बकरा लो, अपनी वाजिब कुर्बानी अदा कर लो। आपको 10 बकरे और करने हैं, मान लो दाखिला तरीके 15 लाख का, 1.5 लाख का आप बकरा खरीदते हैं, 1 लाख का आप बकरा खरीदते हैं, तो 10,000 में 10 बकरे आ जाएंगे। आप अपनी तरफ से 2, 3, 4 ज़बह कर दो, बाकी के 6 गरीबों के घर बांट दो, जिंदा जानवर बकरा, और इनको कहो कि मेरी तरफ से यानी मेरी नीयत से इसाले सवाब के लिए इसकी कुर्बानी मेरी तरफ से तुम लोग कर देना। तो किस कदर उम्मत का भला और फायदा हो जाएगा। कुर्बानी न करने के नुकसान, आका ने फरमाया, मन वजद साअतन लअन युदाही वलम युदाही फला यहजुर मुसल्लामन। जो कुर्बानी की ताकत रखता है
اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا. آقا نے فرمایا ایک روایت میں فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے، اور دوسری روایت میں فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. جو آدمی مالدار ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو آقا نے فرمایا اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اور وہی آدمی قربانی کی عظمت دل میں رکھے گا جو اللہ کے شاعر کی عظمت دل میں رکھتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے شاعر میں سے بنایا. اتنا لمبا تلنگا بوجھل بھاری بھرکم جانور انسان اس کو نہر کر کے ذبح کر دیتا ہے. اونٹ میں نہر کیا جاتا ہے، باقی جانوروں کے اندر ذبح کیا جاتا ہے. نہر کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اونٹ کے اگلے دونوں پیروں کے درمیان میں نیزہ بھونکا جاتا ہے، جس سے اونٹ سے خون کا فوانہ پھوٹتا ہے اور اونٹ گر پڑتا ہے. اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو اس کو ذبح کریں گے. نہر کافی ہے اونٹ میں. باقی تمام حلال جانور جو قربانی کے ہیں جو ہم ذبح کرتے ہیں اور وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں اس کے اندر ذبح کا عمل ضروری ہے. بغیر ذبح کے کوئی حلال طیب جانور بھی انسان کے لیے حلال اور پاک نہیں ہو سکتا ہے. شاعر وہ قانون، وہ ضابطہ جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ہر قوم، ہر ملک ملت اور ہر مذہب کے قوانین ہے، ضوابط ہے. جب تک آدمی قاعدہ اور قانون اور ضابطے کا پابند رہے گا وہ قوم پھلے گی، پھولے گی، ترقی کرے گی. اور جس قوم کی زندگی کے لیے نہ کوئی ضابطے اور قانون ہے وہ قوم کے نشانات دنیا سے مٹا دیے جائیں گے اور وہ قوم بھی دنیا سے مٹ جاتی ہے. قربانی شاعر میں سے ہے، ہر قیمت میں ہم قربانی کریں گے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. کوئی کیسی ہی پابندی لگائے، قربانی پر کوئی پابندی لگا نہیں سکتا. ہاں ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، کسی ایک دو جانور کے بابت اگر پابندی قانون لگا دی تو ہم ملک کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بین لگے ہوئے جانور کی قربانی نہیں کریں گے. لیکن مینڈا ہے مینڈی ہے، بکرا ہے بکری ہے، بھینس ہے بھینسا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہم اس کی قربانی کریں گے. حلال میں خدا نے برکت رکھی ہے. عام دینوں میں کبھی اتنے جانور دیکھنے نہیں ملتے، لیکن قربانی کے دینوں میں دیکھو ہم تو احسان مانتے ہیں ان حضرات کا جو دور دور سے خرید کر لا کر مارکیٹ میں لاتے ہیں، چاہے وہ غیر ہو یا اپنا ہو. اگر اس قدر محنت کر کے وہ جانور خرید کر نہ لاوے تو ہم کہاں سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جن ممالک میں یہ سلسلہ نہیں ہے تو وہ بینکوں میں پیسے بھرتے ہیں اور اپنی قربانیاں کرواتے ہیں، یا وہ دوسرے ملک میں جہاں ایسے رواج ہوتے ہیں وہاں قربانی کراتے ہیں. ہمارے لیے خدا کا فضل ہے، احسان ہے، شکر ہے. ہمیں اس نعمت پر اللہ کی قدر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قربانی کرے. یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. حالات آنے جانے والی چیز ہے، وہ تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، بلکہ جو حالات میں جتنا زیادہ گرا ہوا ہو اتنا زیادہ مالی قربانی کرے، مال کا تصدق کرے، اتنی زیادہ برکتوں سے نوازا جائے گا. جس حال میں بندہ مبتلا ہوا اس حال سے اللہ کا تقرب حاصل کرے. تنگیاں ہیں، معیشت میں کمزوری ہے، روزگاری نہیں ہے، پریشانی ہے، بھائی داگینہ بیچ ڈال، اس کے بدلے میں تو قربانی کر. دیکھو اللہ کتنے داگینوں کا مالک بناتا ہے. بعض لوگ چھٹک پانے کے لیے بھی مسائل پوچھتے ہیں. ارے سال میں ایک مرتبہ ہے، 365 دن کے لیے خالی 25 روپے روزانہ کے نکال دے قربانی کے لیے. ایک فقیر بھی قربانی کر سکتا ہے، بھکاری بھی کر سکتا ہے. ایک دن کے خالی 25 روپے چاہیے. وہ آدمی بھی قربانی کر سکتا ہے. 365 گنیا 25 کروڑ، کتنا بڑا سرمایہ ہو گیا اس کے لیے. قربانی کرے، بہت زبردست فائدہ اس کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے.
अन्नहु इश्तरा दाहा कबशैन अमलहैन मौजूअैन समीनैन। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा, फरबा, चित कबड़े, 2 मेंढे की कुर्बानी करते थे। आपके जो कुर्बानी का जानवर मेंढा था, उस मेंढे की सिफात बयान की। कबशैन, मेंढा होना चाहिए। क्यों? कि जन्नत से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की जो कुर्बानी की थी, तो वो जन्नत से जो मेंढा आया, जो इम्तिहान में इब्राहिम कामयाब हुए थे और अल्लाह ने जन्नत से मेंढा भेजा था, वो जन्नत के बागात में 40 साल तक चरा था। और 40 साल चरने के बाद खुदा ने उसको इब्राहिम से कुर्बानी मांगकर इस्माइल के ज़बा के अमल का अमली नमूना बनाकर खुदावंद कुद्दूस ने 40 साल जिस जन्नती मेंढे को जन्नत में चराया था और जन्नत में चरा करके फिर इब्राहिम के लिए आया था, तफसीर इब्ने कसीर में है। और जब हजरत इब्राहिम ने इस्माइल के हुल्कुम पर छुरी रखी, फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। हजरत इस्माइल के पैर बांध दिए थे, हाथ बांध दिए थे, मक्का से छुरी लेकर के साथ में आए थे। छुरी साथ में थी, रस्सी साथ में थी। वाकया बहुत लंबा है, जो पहले भी आप सुन चुके हैं। इस तरफ भी उलमा ने मसला बयान किया कि कुर्बानी का जानवर इसके पैर बांधने चाहिए। इब्राहिम इस्माइल को ज़बा के लिए जब मक्का से मीना ले आए मनहर में, तो अपने साथ डोरी भी लाए थे और अपने साथ छुरी भी लाए थे। ये कोई ख्याली वाकया नहीं है, एक बहुत जबरदस्त हकीकत है। आसमान ने कभी वो नजारा नहीं देखा, जमीन पर कभी यह सूरत वाक़ नहीं हुई, जबकि अकलूता लख्त जिगर जिसकी पुश्त में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर समाया हुआ हो, उसके ज़बा का हुक्म खुदा ने इब्राहिम को दिया। मांगा था इब्राहिम ने, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक लड़का दे। अल्लाह ने फरमाया फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, इब्राहिम तू नेक मांगता है, सालेह, मैं तुझे हलीम दूंगा। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तुझे मालूम नहीं, इसको बेआब हो गया जंगल वादी ये सुनसान में अल्लाह के मुकद्दस घर के पास हाजरा के साथ तन्हाई और खलवत की जिंदगी गुजारनी है, और इस बेआब हो गया सुनसान वादी में भूख और प्यास की हालत में तड़पने की सिफत साले के अंदर नहीं होगी, वो तड़पने की सिफत हलीम में होगी। ए इब्राहिम, मीना की संगलाख वादी में मक्का से 3 मील के फासले पर एक बाप अपने हाथ से अपनी प्यारी और लख्त जिगर औलाद में से महबूब तरीन बेटे के हुल्कुम पर, नर्म नाजुक हुल्कुम पर जो छुरी रखेगा और अल्लाह के नाम पर ज़बा करेगा, वो साले बच्चा नहीं, वो हलीम बच्चे की जरूरत है। खैर, बड़े हकाइक हैं इस आयत के झोल में। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जन्नत से अल्लाह ने मेढा उतारा। इस्माइल के ज़बा का हाल देखिए, हाथ पैर बांध दिए, किबला की तरफ मुतवज्जे हो गए, हुल्कुम पर छुरी रखी। इससे पहले कभी आसमान में ऐसा नजारा नहीं देखा था। फिर छुरी नहीं चल सकती है, इब्राहिम की बाजू में से ताकत खत्म हो जाती है, तो वो इस्माइल नन्ही सी जान कहता है, अब्बू जान आप तो पूरी ताकत इस्तेमाल करते हैं, छुरी भी तेज है, लेकिन हो सकता है कि जिस वक्त आप छुरी मेरे हुल्कुम पर चलाते हो, मेरे गले पर, तो आप बाप हैं, मैं बेटा हूं, बाप बेटे की मोहब्बतें हैं, इन मोहब्बतों का संगम चेहरे को चेहरे से मिलाने से हो जाता है। इसीलिए इंसान के सामने जब कोई आ जाता है तो उसको 2 आंखों की शर्म आती है, यह आदमियत का तकाजा है, और जिसको 2 आंखों की शर्म ना आवे वो आदमी नहीं। इस वजह से आपकी मोहब्बत पी बेरी जोश मारती है,
और आपके हाथों से ताकत कुदरती खत्म हो जाती है, तो मुझे बुद्धि के बल पीछे से छुरी चला दें ताकि मैं ज़बा हो जाऊं। ये ज़बा होने के लिए तड़पने वाली जान का हाल है, और वो ज़बा करने वाले बाप की अल्लाह के यहाँ इखलास वाली कुर्बानी का हाल है। वो 40 साल खिला पिला कर तैयार करके जन्नती मेढा आया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कुरान भी कहता है बहुत बड़ा ज़बीहा अल्लाह ने इस्माइल की जान के वीडियो में जन्नत से उतार करके इब्राहिम के लिए दिया और उसको ज़बा किया। मेंढे पर मुझे याद आ गया, इसीलिए मैंने वाकया दोहराया। आका क्या करते थे कुर्बानी के दिनों में? चित कबला, काला सफेद, एक बात ताजा मोटा फरवा मेंढा खरीदते थे, 2 खरीदते थे। इस तरह कब सही में 2 मेंढे होते थे। एक अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे और एक अपनी उम्मत की तरफ से। यह मसला खास समझो। जानवर छोटा एक एक की तरफ से, बड़ा जानवर 7 की कुर्बानी इसमें होती है। ऊंट है, इस तरह भैंस भैंसा है, 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। आदमी कुर्बानी अपनी तरफ से करेगा। वाजिब कुर्बानी के बाद नफल कुर्बानी अपनी तरफ से करे और नियत करे, मेरे माँ बाप, मेरे खानदान, मेरे रिश्तेदार, आदम से लेकर के आज तक के मरहूमिन मुस्लिमीन जायज कुर्बानी अपनी तरफ से है, नफल कुर्बानी, लेकिन सवाब सबको पहुंचा रहा है। अब सवाब में जितनी नियतें करे सबकी जायज, इसलिए कि पैगंबर ने अपनी वाजिब कुर्बानी करने के बाद दूसरी नफल कुर्बानी हमारे नबी ने की, लेकिन सवाब कुल उम्मत को बख्श दिया और 10 साल तक पैगंबर ने यह अमल किया। इससे यह भी मसला मालूम हुआ कि उम्मतियों को भी अपने नबी की मोहब्बत में जरूर एक कुर्बानी अल्लाह के पैगंबर की तरफ से करनी चाहिए। कुर्बानी करके हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, मरहूमीन के लिए इसाले सवाब भी किया जा सकता है। एक बकरे में, एक बड़े जानवर के हिस्से में अलग अलग नीयतें हो सकती हैं, कईयों की नीयतें हो सकती हैं, और एक पूरा बकरा, एक पूरा हिस्सा, एक के लिए भी इसाले सवाब किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी की वसीयत है, कोई वाजिब है, तो एक एक ही की तरफ से हो सकती है। अब कुर्बानी के कुछ मसाइल देख लो। कुर्बानी ताजा मोटा फरवा उम्दा जानवर की होनी चाहिए, इखलास के मद्देनजर, अल्लाह को खुश करने के जज्बे से। कोई एक वाला जानवर न खरीदा जाए, कोई एक वाला जानवर। इसीलिए टाइम रखा है 2 बजे के बाद से लेकर मगरिब तक। इसमें फायदा यह है कि दिन में आदमी देखेगा। अभी नमाज से आधा घंटा पहले एक हाजी साहब आए, अरे आदमी बाहर का बैठकर चला गया और उसको जख्म निकला, तो आदमी दिन दहाड़े देखे तो कुछ पता चले। हमारे सब काम अंधेरे में हो, दिन में होवे नहीं। इसलिए मार्केट का टाइम भी जोहर के बाद से लेकर मगरिब तक इसलिए रखा जाता है ताकि जानवर आदमी टटोल ले, ऐब से पाक साफ। कोई भी ऐब हो, कुर्बानी में चल भी सकता है तो भी ऐबदार नहीं खरीदना है। इस्माइल को याद करो, जन्नत के मेंढे को याद करो। लेकिन अगर खरीद लिया और एक बाद में पता चला, पहले मालूम नहीं हो सका, अब मसले अलग अलग है। सींगड़ों के मसले ये हैं, सींग जड़ से उखड़ गया है और अंदर मगज में 1 इंच तक चला गया है, इसका घाव वो नहीं चलेगा। वो जानवर जिनके पैदाइशी सिंगड़े ही नहीं है, इस जानवर की कुर्बानी भी सही है। यह सिंगड़ा टूट गया है लेकिन मगज तक नहीं गया और ऊपर ही ऊपर खोल निकल गया है, ये जायज है। लेकिन पैदाइशी सिंगड़ा जो नहीं है, जिसे खेतों में होता है, तो उसकी कुर्बानी जायज। लेकिन पैदाइशी कानज नहीं है, कुर्बानी जायज नहीं है। बाद लोग क्या करते हैं, चलो सिंगड़ा पैदाइशी नहीं तो पैदाइशी कान भी नहीं है तो वो जायज, तो ये भी जायज। ऐसे कयास मत करो, कुर्बानी करनी है। मसाइल बहुत बारीक है, मैं आपको बारीक बारीक मसाइल समझो, आपका दिमाग काम करता बंद हो जाए।
मादा जानवर खरीदा, मादा, मालदार ने खरीदा उसके मसले अलग, गरीब ने खरीदा उसके मसले अलग। मादा जानवर खरीदा, कुर्बानी से पहले बच्चा जन्म दिया, तो ये मादा जानवर का बच्चा मालिक का है, मालदार का, उसको ज़बा करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुर्बानी का जानवर गरीब ने खरीदा और कुर्बानी से पहले मादा ने जन्म दिया बच्चा, तो उसके लिए वो बच्चा भी करना पड़ेगा, नहीं ये मादा को भी करनी पड़ेगी ज़बा। मसला अलग हो गया। ऐन कुर्बानी के वक्त अगर जिंदा बच्चा निकल आया तो मालदार के लिए अलग मसला है, गरीब के लिए अलग मसला है। बाद लोगों की आदत क्या है, अब मसला क्या पूछे, ये यूं है तो ये भी यूं होगा, कयास इसमें नहीं चलता है। जानवर के चारा खाने के मसाइल में बकरे, घेटे, इसके दांत रहते नहीं है, वो जुबान से चारा खाते हैं। बड़े जानवर दांतों से चारा खाते हैं, लिहाजा उनके दांतों में और बड़े जानवरों के दांतों में एक को दूसरे पर कयास न करे। जो जानवर जुबान से चारा खाते हैं उसके लिए दांतों की जरूरत नहीं, पैदाइशी न हो या गिर गए हो चलेगा। लेकिन जो जानवर दांत के साथ जुबान इस्तेमाल करते हैं तो उन जानवरों की जुबान अगर कट गई है तो भी नहीं चलेगा। दुम के मसले भी अपनी जगह पर अलग है। जानवर को खसी करना है, जिसमें चीटिए से उसके कपूरिये दबा दिए जाते हैं खुशियतन, ये जानवर में ऐब नहीं है। जानवर के गोश्त को एकदम खूबसूरत बनाने के लिए और गोश्त की जो एक किस्म की बू होती है उसको खत्म करने के लिए अमल खिसा किया जाता है। ये तो बहुत अफजल अमल है। लिहाजा चंद मसले में जिक्र कर देता हूं, वरना मसाइल चूंकि कोई सोते सोते भी सुनता है, कोई आधी जागते में आधे सोते में, और किसी का ध्यान कहां चल गया हो। जैसे कुर्बानी के जानवर तो अपने जानवरों में आदमी का ध्यान बढ़ता है, इसलिए हम रोजाना पढ़ते पढ़ाते हैं। 20-25 तलबा होते हैं, 5 सब तरीके से हाजिर होते हैं, 20 सब तरीके से गैर हाजिर होते हैं, यानी माइन आदमी का नहीं हाजिर रहता है। तो कान के मसले, दून के मसले, इस तरह दांतों के मसले उलमाए किराम से पूछकर माहिर तजर्बाकार आलिम होना चाहिए, जिसको इन मसाइल से किताब देखने का जज्बा और शौक हो, और वो किताबों से मसाइल मुतंबर के। अभी का जो किस्सा है, अभी का ताजा, एक घेटे का एक सिंगड़ा सलामत था और उसका खोर भी गिरू गिरू था, और दूसरा बिल्कुल सिंगड़ा था, 1 इंच के बराबर बाहर था। अब किसी ने कह दिया नहीं चलेगा कुर्बानी, क्योंकि वो सिंगड़ा देख लिया था खोर वाला, तो ये सिंगड़े के बाबत कह दिया कि नहीं चलेगा। मेरे पास आए, मैंने कहा कुर्बानी हो जाएगी, इसलिए कि मगज तक अगर उखड़ गया है और अंदर मगज में 1 इंच चला गया है घाव, वो नहीं चलता है, तो ये तो सलामत है, चलेगा। आदमी को शक तब पैदा होता है, शक इस वक्त के इसने यूं कहा, इसने यूं कहा, तो तेरी अपनी भूल है। तुझे तजर्बाकार मसाइल से वाकिफकार आदमी तलाश करना चाहिए, ये तेरी अपनी भूल है। बतलाने वाले अपने एतबार से बता देते हैं। खैर, कुर्बानी के जानवर के ज़बा करने का तरीका, पहले पानी पिला दो, जानवर न देखता हो इस तरह छुड़ियां तेज कर लो, वगैरह लकड़े सब तैयार कर लो, कुर्बानी की जगह नरम कर दो, जहां जानवर को पछाड़ना है उसके हाथ पैर यानी अगले पांव पिछले पांव बांध दो। जो ज़बा का माहिर आदमी है वो ज़बा करे, और नजीक में खाड़ा बना दो ताकि खाड़े के अंदर खून चला जाए। ये ज़बा करने का तरीका, किबला की तरफ रुख कर दो उसका, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर छोटी दुआ है, बड़ी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन हादा मिनका व लका व तक़ब्बलहु मिन्नी औ मिन फुलानिन। ये पूरी दुआ है। हम यहाँ जब हिस्से वाली कुर्बानी करते हैं तो हमेशा पहले ये दुआ हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कसाई को तो याद नहीं होती, फिर खाली वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता है। लिहाजा घर में अगर पढ़े लिखे हो तो ये दुआ जरूर पढ़े। 4 जगह हैं, हुलकुम
मिर्रीख और वज्जान, इसका कटना जरूरी है। 4 में से 3 कटी तो भी हलाल, 4 में से 2 कटी तो ये मुर्दार है, हराम है, इसको नहीं खा सकते। अब बाद लोग पूरी गर्दन अलग कर देते हैं, ये अमल मकरूह है, ये अमल मकरूह है ज़बा का, वरना जानवर के गोश्त में कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हलाल जानवर में 7 चीजें हराम है। इसलिए हम एक मोटा सा पर्चा निकालते हैं और मोटी मोटी बातें तकसीम करते हैं लोगों में, ताकि इसको पढ़कर कुर्बानी की जाए, या कम से कम किसी आलिम के पास बैठ करके 2-5 मिनट मुज़ाकरा करके उसको कुर्बानी करे, अपने जानवर की कुर्बानी करे। ये तरीका है, इस तरह कुर्बानी करनी चाहिए। जानवर ठंडा होने के बाद खाल उतारी जाए और खाल उतार कर फिर जानवर का गोश्त में से 7 हराम चीज में से एक नापाक चीज तो खून अलग हो गया, दमे मसफूक, ये तो निकल ही गया। बाकी 6 चीजें अलग करके गोश्त के मुस्तहब यह है कि 3 हिस्से करें, एक गरीबों में, एक रिश्तेदारों में और एक जो है अपने लिए, 3 भाग करें। मसलन 30 किलो है तो 10-10 किलो, ये मुस्तहब है। कोई पूरा बकरा घर में रखना चाहे तो भी रख सकता है, लेकिन अलबत्ता गरीबों को देना बेहतर है। ऐसा नहीं कि बेटी के यहाँ, बहन के यहाँ, मामू के यहाँ, इसकी बोटी इसके घर, इसकी बोटी इसके घर, यही होता है आमतौर पर। न्याणियों के घर, न्याणियों से घर, इनके घर। इससे बेहतर है अगर उनके यहाँ कुर्बानी हुई है तो गरीब तलाश कर लो। एक महल्ले में से माशाअल्लाह काफी कुर्बानी होती है। अगर मोहल्ले वाले अपने गोरबा के लिए ये निजाम कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं रहेगी। इस पर अमल करना चाहिए। कुर्बानी करने के बाद गंदी चीज है वो जो खाना किया है उसमें दफना दो, मसला खत्म हो गया। लेकिन आप कहेंगे हमारे यहाँ तो कहाँ सहूलत है, घरों में, शहरों में। चलो शहरों में सहूलत नहीं तो म्यूनिसिपालिटी ऐलान करवाती है, भाई उजला लेने हम आ जाएंगे, नंबर भी देती है। अभी भी ऐलान हुआ कि बाहर सड़कों पर, चौराहों पर न डाले। देखो ये शायर है, इसकी बेहुरमती हुई, ये भी बेहुरमती में दाखिल है। वो दिन दूर नहीं कि खुदा अमल कुर्बानी से हमको महरूम कर दे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस पर कुछ ख्याल रखो। ये खाली ऐलान नहीं है, ये म्यूनिसिपालिटी का मसला नहीं, तेरी कुर्बानी की कबूलियत का मसला है, तेरी अपनी कुर्बानी की कबूलियत का मसला है। तेरी उस वक्त कबूल होगी जबकि गंदी को तू दफन करे और अच्छी को अपने पेट में ले। इसीलिए मसला ये है, कुर्बानी के दिन में कुर्बानी के जानवर की बोटी खाना और उससे पहले कुछ न खाना, यह सुन्नत है। इस तरह कुर्बानी करने वाले के लिए यह वाजिब है गंदी चीजों को दफन करे। दफना नहीं सकते हैं, म्यूनिसिपालिटी को हवाले करे। एक फोन पर नहीं आए तो मतलब वो हमारे नौकर तो है नहीं, लेकिन कम से कम हमारा भी अखलाकी फरीजा बनता है कि हम इसको पैक करके इन जगहों पर जहां उनकी तरफ से डिब्बे रखे हुए हैं डाल दे। कुर्बानी के जानवर की खाल दीनी मदरसों में पहुंचाए। बैतुलमाल की तरफ से भी ऐलान है, मदरसा फैजुल कुरान कुव्वतुल ईमान की तरफ से कुर्बानी की खाले लेते हैं। श्रीनगर मदरसा में से कुर्बानी होती है, यहाँ बाईपास पर इस्माइल भाई दिल्ली और हाजी सुलेमान पटेल के डेले में जकरिया गेट के पास बिल्कुल हर साल वहां कुर्बानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 71 बड़े जानवर यहां ज़बा हुए थे, जिसमें से 41 हिस्से वाले थे और 30 नंग जो है लोगों के ज़बा के 71 जानवर ज़बा हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह हिस्से वाली कुर्बानी हम जो बंगाल में करते हैं वहां 3 आदमी मदरसे से जाते हैं, ईद से 5 दिन पहले और ईद के 2 दिन बाद तक वहां रहते हैं, खुद जानवर खरीदते हैं, देहातों में ले जाते हैं। वहां गरीब गुर्बत है तो हर घर में से एक एक आदमी आता है। 15 गांव का घर है, वहां 15 जानवर दिए, 10 जानवर दिए, 5 जानवर दिए, एक एक आदमी आएगा, कटिंग में ज़बा में शरीक रहेगा, फिर दिगलियां करेंगे गोश्त की, फिर इन 20-20 घरों के अंदर वो ले जाएंगे। तो वहां पिछले साल 175 जानवर वहां ज़बा हुए थे बड़े, और वो असातिज़ा वहां साथ में रहकर, मदरसे का स्टाफ साथ में रहकर खरीदता है जानवरों को खुद ज़बा करवाने का अमल। और हर जगह पर जो है माहिरीन उलमाए किराम की मईयत में रहकर के ये काम किया जाता है। तो चूंकि यहाँ गुजरात में बेम जानवर नहीं होते, वहां होते हैं,
इस हिसाब से वो जानवर इस कीमत में मिल जाता है बॉर्डरों के पास, तो वहां हिस्से की कीमत जो है 1300 रुपये है, 13×7=91, 9100 हुई, तो वो जानवर वहां 7000 से मिलना शुरू हो जाता है, बल्कि उससे भी कम में, लेकिन अच्छा जानवर मिनिमम। और यहां आपको मालूम है बड़े जानवर की किल्लत है, तो 2800 रुपये इस साल सोचे हैं एक हिस्से के। तो जहां हिस्सेवार पहले तो यही तय कर लें, मेरी कुर्बानी मेरे हाथ से मुझे करनी है, यानी मुझ पर जो वाजिब कुर्बानी है मेरे जानवर की, मेरे हाथ से मैं खुद करूंगा। और अगर ये मुमकिन नहीं है, हर एक के पास असबाब मुहैया नहीं है, तो जहां हिस्से वाली कुर्बानी दी है वहां रह करके या मुअतमद जराए से जहां कुर्बानी होती है वहां कुर्बानी करवाने का और कराने का एहतिमाम करना चाहिए। ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज, ईद के दिन सुबह में जल्दी उठना, गुस्ल करना, नहाना, नए कपड़े या मौजूदा में से उम्दा पहनना, जो सारी सुन्नतें हैं वो यही। अलबत्ता अरफा के दिन की सुबह या 9 ज़िलहिज्जा की सुबह से तकबीर तशरीक पढ़नी है, हर एक पर वाजिब है, न बुलंद आवाज से वाजिब है। बाद लोग अगली सफों में तो जोर जोर से पढ़ते हैं, पीछे खाली जुबान हिलाते हैं, ये वाजिब के छोड़ने का गुनाह है। जैसे वितर की नमाज वाजिब है, कितना बड़ा गुनाह है, ये तकबीर छोड़ने का गुनाह है। जोर से पढ़ना है, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 5 दिन की 23 नमाजें हैं। अरफा की सुबह 9 ज़िलहिज्जा की फजर से 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक, कुर्बानी से एक दिन पहले फजर से शुरू करनी है, कुर्बानी खत्म होने के बाद दूसरे दिन की असर तक 23 नमाजों में 5 दिन में बुलंद आवाज से ये तकबीर तशरीक पढ़नी है। तमाम मसाजिद के अंदर ईद की नमाज तय है, हर एक मस्जिद में होगी। 7:30 बजे वक्त शुरू हो जाता है ईद की नमाज का 6:45 बजे से। बकरा ईद में जल्दी करना भी मुस्तहब है, ये भी याद रखो, बकरा ईद की नमाज में जल्दी करना मुस्तहब है। 6:45 से वक्त शुरू हो जाता है, तो 6:45 के बाद से हमारे यहाँ इस मर्तबा 7:30 सोचा गया है, तो उस वक्त से जो है नमाजें हर जगह होगी। ईदगाह पर मखसूस लोग हैं, इसलिए इस साल भी हम अपनी अपनी मसाजिद के अंदर ही नमाज ईद अदा कर लेंगे। ये चंद जरूरी ऐलानात थे। 31/7/2021 को शनिचर के दिन यहाँ समूह निकाह का प्रोग्राम रखा गया है। खैर ये तो अभी इसके बाद जुम्मा भी आएगी। ये मसाइल हैं, इन मसाइल को सामने रखकर कुर्बानी करें। हम हर मर्तबा कहते हैं कसाई समूह कुर्बानी होती हो या इनफिरादी, एक जगह जबा करके दूसरी जगह जाता है तो खून वाले कपड़े पहन कर जाता है। देखो पहले से कहा गया, अमन के जमाने में लोगों को समझ में नहीं आया, अभी गवर्नमेंट ने 5 कायदे कड़क बनाए हैं। कोई खून वाले लिबास में पुलिस के हाथ में आ गया तो जामीन भी देना पड़ेगा, ने दंड भी भारी है। हम तो बहुत पहले से कहते थे कि भाई ये मत करो, अच्छा नहीं। बाद आदमी खून देख नहीं सकता, अब उसको एक तरह की एलर्जी होती है। हमें अपना काम अपने साथ अपनी जगह में कुरान के और सुन्नत के बताए हुए ज़ाब्ते और उसूल से करने में होता क्या है कि कोई हमको दंड लागू करे, कोई हमको जेल की धमकी दे फिर करे। नहीं नहीं, हमारे इस्लाम का ज़ाब्ता बड़ा अजीब है। इसलिए कोशिश इस बात की करें, जहां ज़बा हुआ दूसरी जगह जाना है, सफाई के बाद जाए। चाकू, छुरा, कुवाड़ा वगैरह बगैर पर्दे के ढांके हुए एक जगह से दूसरी जगह न ले जाए। हदीस शरीफ में चाकू देने का तरीका यह है एक दूसरे को कि मुठ वाले हिस्से की तरफ से दे, नोक वाले हिस्से की तरफ से न दे। तो ये तो बाहर का मसला है, इसलिए इसका खूब ख्याल रखें। जो हिदायतें की गई इसका खूब ख्याल रखें। और हिस्से वाली कुर्बानियों में जो ऐलान किया गया, हिस्से लिखवाए मार्केट, यहाँ बिल्कुल मार्केटिंग यार्ड के सामने वाले हिस्से में कल से शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जगह तलाश की समाज के साथियों ने और इसको हमवार भी कर दिया और कल से निजाम चल रहा है। लिहाजा कोशिश करके, और जानवरों की हेरा फेरी के अंदर मैंने अगली जुमा में भी कहा था कि पेट साधन हो,
जानवर की इज्जत भी वाजिब है, जानवर की नफ्से जानवर की इज्जत भी वाजिब है। उसको स्कूटर पर होंडा पर 2 पैर इधर 2 पैर इधर करके ले गए तो क्या जानवर का पैर दबता नहीं होगा? पेट क्या जानवर के कलेजे में घाव नहीं लगते होंगे? इसको तुझे जमा करना है, इसको अल्लाह के दरबार में तुझे नजराना पेश करना है। और नजराने को तो नातरे में हमारे यहाँ पहले दागीने और जो भेजा जाता था उसको मोतियों के थालों में लेकर के जाते थे। ये एक नजराना है जो ससुराल में जाता है, ये एक नजराना है जो बारगाह खुदाबंदी में जाता है। क्या उसकी ये वकालत है? क्या उसकी ये वैल्यू है? समझ में आता है? ये अकली बात है जो मैं पेश करता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई हुई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। पिछली जुमा को याद करो, आज की जुमा को याद करो, कितनी कड़ाके की गर्मी थी, अल्लाह ही ने रहमत की बारिश अता फरमाई। अल्लाह का शुक्र अदा करके 2-2 रकात सलातो शुक्र नमाज के खत्म के बाद पढ़नी है। साउथ अफ्रीका के साथियों के लिए दुआ करनी है। वहां एक ब्लैक इंसान यानी वहां का ये हबशी काला करप्शन के केस में हुकूमत के एतबार से बड़ा आदमी था, पकड़ा गया, कई महीनों की जेल आई। अब उसको छुड़वाने के लिए वहां की कौम ने उसकी फसाद मचाया। अल्लाह अकबर, जो कल करोड़पति थे आज उनके घरों में खाने का नहीं है, सुपर मार्केट खत्म। और कैसा किया अल्लाह के इन बंदों ने, सब लूट लिया और लूट करके सुपर मार्केट के जला दी आग में। 2 यतीम बच्चों का हाल, एक साहब ने मुझे कहा कि हमारे रिश्तेदार में ये 2 बच्चे यतीम, उसके बाप मर गए, बहुत मेहनत करके वहां बड़े हुए, फिर कोशिश की, दुकानें लगाई, सुपर मार्केट, सब लूट लिया गया और सब जला दिया गया। नमाज के बाद उनके हक में भी दुआ करनी है। और ये इबरत का निशान अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाजत फरमाए। जो कल देने वाले हाथ थे, जो करोड़पति थे, जो सुपर मार्केटों के मालिक थे, आज उनके हाल बहुत बुरे हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस शर्र फसाद से पूरे आलम की हिफाजत फरमावे और अमन की शक्ल खुदा कायम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। यूपी से मदरसे के चंदे के सिलसिले में मौलाना तशरीफ ले आए हैं। मुस्तहिक इदारा है, ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से इनका ताउन करते जाएं। 31/7/2021 शनिचर के दिन मांगरोल में समूह निकाह का प्रोग्राम है। जो वहाँ नाम उसमें लिखवाना चाहते हैं हनीफ भाई पठान की दुकान पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 चंद बातें, कुर्बानी वाजिब है। हर आकिल, बालिग, आज़ाद, मुकीम मुसलमान मर्द और औरत जो निसाब के मिकदार माल रखता हो। अभी कुर्बानी के दिनों में पैसे आ गए, अभी हम निसाब के मिकदार माल हैं। बल्कि हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद बेमाद माजी अमीर शरीयत गुजरात, इन्होंने तो लिखा है सदक़तुल फित्र जो अपनी तरफ से अदा करता हो उसको भी अपनी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी, हर एक पर वाजिब है। एक मुसाफिर है, गुलाम है और पागल है और छोटा बच्चा है, इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर कोई इनकी तरफ से करना चाहे तो सवाब पहुंचाने की गर्ज से कर सकते हैं। तो आकिल, बालिग, मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी के दिनों में निसाब के मिकदार माल हो गया, कुर्बानी वाजिब है। पूरे घर की तरफ से एक बकरा या एक भाग नहीं चलेगा। जितने मर्द और औरत, आज़ाद, आकिल, बालिग, जिनके पास निसाब के मिकदार माल है, हर एक की तरफ से अपनी कुर्बानी वाजिब। अगर एक बड़ा जानवर खरीद लिया या ये खरीद लिए या 10 बकरे खरीद लिए तो हर एक जिन जिन की तरफ से कुर्बानी है हर एक अपनी नीयत करे। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा की कुर्बानी करवाई। आपने फरमाया, ए फातिमा तो अपनी कुर्बानी के जानवर के ज़बह करने के वक्त जानवर के पास खड़ी हुए, चूंकि अल्लाह के पैगम्बर अपने दस्ते मुबारक से जानवर ज़बह करते थे। अगर महरम रिश्तेदार हैं तो औरत की तरफ से कुर्बानी है तो औरत खड़ी रह सकती है अगर देख सकती है तो, अगर उसमें ताकत देखने की नहीं है तो न खड़ी रहे। इसी मौके पर आका ने फरमाया था कि कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की मग़फ़िरत हो जाती है। तो खुश दिली से जितनी हो सके इतनी ज्यादा कुर्बानी करे। तंगियों में कुर्बानी करने से अल्लाह फरावानी पैदा कर देगा। हालात से घबराए नहीं, माली इंतजाम आने जाने वाली चीज है, कोशिश करे, मेहनत करे, ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां करे।
ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी अपने माल को इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में ज्यादा लुटाएंगे, अल्लाह बदहाली को खत्म करके खुशहालियों में मुंतकिल कर देगा और बेबरकती को बरकत से बदल देगा, बेरोजगारी को रोजियों में बदल देगा। इसलिए हिम्मत रखें, बुलंद जज्बात रखें और कोशिश करके जो है कुर्बानी कर ही डालें। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए नफली कुर्बानी कर सकते हैं, हर एक की तरफ से अलहदा भी कर सकते हैं, एक करके सबके इसाले सवाब की नियत करना ये भी जायज़ है। मैंने मोटे मोटे मसाइल जिक्र कर दिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल को हमारे लिए आलम इस्लाम के लिए अपने फजल करम से आसान फरमा दे। हर किस्म के शर्र व फसाद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाजत फरमाए। कुर्बानी की खालों की कोई खास कीमत नहीं होती है पिछले सालों की तरह। खाल भी खुद पहुंचाने का एहतिमाम करे तो बहुत अच्छी चीज़ है, वसूल करने वालों को खाल दे दें और इसके साथ नमक वगैरह छिड़ने के पैसे भी पहुंचा दे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पिछले साल 60,000 की खालें हुई थी, इसमें तकरीबन 11,000 लोगों ने नमक छिड़कने के लिए कुर्बानी में पैसे दिए थे, वो भी आ गए तो 60-61,000 की ये खालें हो गई थी। इससे इदारों का फायदा हो जाता है। कोशिश करें, अल्लाह ताला हर नेक अमल को जरूर कबूल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह हम तमाम कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपके मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी ज़ात आली से ताल्लुक अता फरमा। आपका बड़ा फضل हुआ, बड़ा करम इनाम और एहसान हुआ। और मालिकुल मुल्क, हम इस काबिल नहीं थे ऐ अल्लाह, लेकिन आपने करम फरमा दिया, रहम फरमा दिया। ऐ अल्लाह, सूखती जाती हुई खेती को आपने आबाद फरमा दिया। कितनी बड़ी मेहरबानी का मामला हो गया। ऐ अल्लाह, हमारे बगैर किसी इस्तेहकाक के महज अपने फजल से आपने रहमत की बहुत अजीम शान बरकत वाली बारिश अता फरमाई। अल्लाह, इस नेमत की हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमा। हम कब सलात व शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह हमारी ये सलात व शुक्र कबूल फरमा। इस पानी को जमीन की सोतों में दाखिल करके हमारे लिए बरकत का निजाम फरमा। इन खेतियों में बरकत पैदा फरमा। हालात बोलते बोलते 2 साल हो गए और मालिकुल मुल्क, फैसला तो आपका चलता है। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बिर कुलूबना अला दीनिक। ए वो साहब, कायनात के तमाम मखलूक के दिल तो आपके कब्जे कुदरत में है। ऐ अल्लाह, आप जैसे चाहें उलट फेर करते हैं। अल्लाह, इसमें हमारे लिए खेतियों में बरकत पैदा फरमा, आसाई से नसीब फरमा, राहतों के दरवाजे खोल दे, बेबरकती को खत्म फरमा, बेरोजगारी को खत्म फरमा, इस मुल्क की महंगाई को खत्म फरमा। अल्लाह, इस नेमत बारिश में बरकत पैदा फरमा, हमें और ज्यादा रहमत की बारिश से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा के इबादत व बहीमतक वंशुर रहमतक व अही बलदकल मय्यत। ऐ अल्लाह, तेरी धरती के एक हिस्से में, तेरी मखलूक के एक खास हिस्से में, ऐ अल्लाह, गुजराती भाई और मुसलमान साउथ अफ्रीका की डरबन सिटी में बहुत जालिमाना कहर के साथ लूट लिए गए। ऐ अल्लाह, जिनकी सुपर मार्केटें, दुकानें, फैक्ट्रियां किस बेदर्दी के साथ लूटी गई, जहां इंसान की जिंदगी की सलाहियतें लगी थी। ऐ अल्लाह, और आपने वहां 2 पैसे कमाने के लिए अल्लाह आपने एक लायकात और इख्तियार दिया था। आनंद फानंद क्या काया पलटी कि वो लूट लिया गया। जैसे वहशी दरिंदे पालतू जानवरों पर या शिकार पर कैसे हमला करते हैं, उससे भयानक तरीके से शिकार किया गया। ऐ अल्लाह, कसूर जिसका था उसको सजा हो। रब्बुल आलमीन, तेरे करम का फैसला है, तू अरहमुर राहिमीन जात। क्या गुजरती होगी उन बंदों पर, उन बंदियों पर जिनकी जिंदगी का खुलासा सीसीटीवी कैमरे के साथ उनकी नजर के सामने लूटा जा रहा था। अल्लाह, इस पर बस नहीं हुआ, लूटने के बाद इनको जलाकर राख कर दिया गया, निशानात तक खत्म कर दिए गए। वो इंसान थे, चाहे मजहबन मुसलमान हो या गैर हो, इनको एक दिल आपने दिया था। एक दिल होता है हर इंसान के पास। ऐ अल्लाह, तो सब्र अता फरमा,
हिम्मत अता फरमा, गैर से मदद की शक्लें पैदा फरमा। जब पूरे शहर की मार्केटिंग खत्म कर दी गई, जहां से खाना पीना की अशिया वगैरह मिलती थी, अब वक्ती तौर पर तो वहां ये सारी चीजें बंद हो गई। लोग घरों में कैद हो गए, घरों पर पत्थरबाजियां हो रही है, घरों पर आतिशबाजियां हो रही है, घरों पर शोले छोड़े जा रहे हैं। ऐ अल्लाह, अपने फضل से हिफाजत फरमा। जो हुक्काम और अमन का फौजी दस्ता था वो भी लूटने में मशगूल हो गया। क्या बुरा हाल मुल्क का हो गया, मुल्क के इस हिस्से का हो गया। अरहमुर राहिमीन, अपने फضل से अमन अता फरमा, सुकून अता फरमा, जुल्म को खत्म फरमा, इंसान का सूरज चमका दे, इनको हिम्मत अता फरमा, इन्हें ढारस नसीब फरमा, इन्हें सब्र अता फरमा। हर किस्म के खलफशार इख्तिलाफ फितने से पूरे आलम के ऐ अल्लाह जर्रे जर्रे की कताए कितने की भरपूर हिफाजत फरमा। जिन साइद और खुशकिस्मत इंसानों के मुकद्दर में आपने हज लिख दिया, ऐ अल्लाह वो हज अदा करेंगे। आइंदा जुमेरात वहां के हिसाब से बुधवार तकरीबन हज का दिन पड़ेगा। अरहमुर राहिमीन, इन हुज्जाज किराम के हज के सफर को आसान फरमा ले, कबूल फरमा ले। तेरा फैसला है, तू 1000 से भी हज करवा ले, तो 7000 से भी हज करवा ले, तो करोड़ों से भी हज करवा ले, तेरे फैसले को कोई टाल नहीं सकता। ये तो वायरस इंसानों के वायरस है, सुनते सुनते इंसान भी वायरस बन गया है। तेरा फैसला तो तू ही बेहतर चलता है। हमारी ही गुनाहों की रहुसत है, हम ही वायरस बन गए, हम अफसाने बन गए। कल हमारी हैसियतें खत्म हो जाएगी, गोरे गोरिस्तान के हवाले हो जाएंगे। अल्लाह हुज्जाज किराम के सफर हज को आसान फरमा ले, कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दे। पूरे आलम से सख्ती को खत्म फरमा कर सहूलत अता फरमा, मुसीबत को खत्म फरमा कर राहत के दरवाजे खोल दे, मुसीबत को दूर फरमा कर नेमत की बारिश बरसा दे। तो ही मालिकुल मुल्क है, तो ही जुल जलाल वल इकराम है। कुर्बानी के दिनों में हमें खुद अपने एतबार से चौकन्ना रहने की तौफीक अता फरमा। हम अदना से अदना गलती का इर्तिकाब करके अल्लाह इस शायर की बेहुरमती के हम खुद शिकार न बन जाए, इससे हमारी हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। तूने बड़ा करम फरमा दिया। पिछली जुमा को शोले मारती हुई कड़क गर्मी थी, आज तूने रहमत की बारिश देकर ठंडक का माहौल कर दिया। तू ही हालात का बदलने वाला है, तू ही रहमत और शक्ति का पैदा करने वाला है। हमारे लिए रहमत के फैसले फरमा दे, आसाइशों के फैसले फरमा दे। ऐ अल्लाह, कुर्बानी के अमल को कबूल फरमा ले। जहां जहां आलम के अंदर मुसलमान बसते हैं, ऐ अल्लाह हलाल और तय्यब में आपने बरकत रखी है, जानवर की फराहमी फरमा दे। ऐ अल्लाह आसान फरमा दे, इस अमल को इखलास के साथ कबूल फरमा ले और अब तक की बस हाली को खुशहाली में बदलने का फैसला फरमा दे। ये जिलहिज्जा का अशारा है, इसमें दुआएं कबूल होती है। एक अमल 700 के बराबर होता है। बहुत बड़ा एहसान हुआ कि इस अशारा जिलहिज्जा में 2-2 जुमा दे दी है, और वो तो तकबीरत तशरीक की जुमा है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह इसलिए हम मांग लेते हैं, अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह इन दिनों का फकीर भिखारी महरूम नहीं होता है। ये बड़े दिन है और बड़े दिनों में कदर होती है छोटों की, और बहुत बड़ी बड़ाई के मालिक अल्लाह हम जलीलों को कदर मंजिलत अता फरमा दे कि दुआ कबूल कर ले। परेशान हाल भाइयों की परेशानी दूर फरमा। बहुत से थे जो कुर्बानी करते थे, आज घोड़े गोरिस्तान में चले गए। बहुत बड़ा खला घोड़ों में नजर आएगा, बहुत बड़ा खला, बहुत बड़ा खला नजर आएगा। और मासूम मासूम औलाद, वो प्यार और मोहब्बत करने वाली औरतें और मर्द, इनको याद करेंगे। हमारी जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो जाएगा। अब हम गुरूब के करीब है मौला, अल्लाह हम गुरूब के करीब है। तेरी जात ही जिंदगी और मौत की मालिक है। वो गोरे गोरिस्तान में चले गए। अल्लाह कब्रों को नूर से भर दे, रूहों को इनमें दाखिल फरमा दे, जन्नतुल फरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमा दे। जहां जहां बारिश लगी है अपने फजल से इंतजाम फरमा दे।
खुशहालियां नसीब फरमा दे, खुसूसन साउथ अफ्रीका के खास तौर पर मुसलमानों को और आमतन इंसानों को, चाहे वो गुजराती भाई हो या हमारे हो। ऐ अल्लाह हर एक हमारा ही है, नबी ने हर एक को सराहाया है। फितने के जमाने में किया हुआ काम खासगार हालत के जमाने में किए हुए काम के मुकाबले में बढ़ा हुआ होता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज अल्लाह के नबी पर पेश किए गए तो बहुत करीब थे, अबू बकर उमर दूर बैठे थे, पूछा तो बता दिया। उमर ने फितने के जमाने में काम किया है, हालात के जमाने में काम किया है। अरे मुसलमाना ने आलम, हालात के जमाने में अल्लाह के मुकर्रब बनने के लिए जो जो आमाल इस्लाम करते हैं बहुत करो, इससे बहुत बड़ी फजीलत हासिल होगी। अल्लाह ही हालात को बदलेगा, अल्लाह ही रहमत के फैसले फरमाएगा। इस मुल्क में हमारा खून की सिंचाई हुई है और खून से इस मुल्क की आबादी हुई है। अल्लाह इसको अमन और अमान अता फरमावे, शर्र व फसाद से हिफाजत फरमाए। जो लोग हयात हैं, जान माल इज्जत आबरू में बरकत अता फरमा, मकरूज के कर्जे की अदायगी भी शक्लत अदा फरमा, औलाद के नेक साले औलाद अता फरमा, रहमत बारा में बरकत अता फरमा। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका।